diffraction, and polarization. Mainly we have three topics: interference, diffraction, and polarization. Today we are going to start interference. Okay. So in this class we have total 438 students. But I think in first year students are near about 650. So how many are absent? Student numbers are increasing, 442. So nearly 550, 650, 200 students are absent. 200 shouldn't be absent because this is the online class. You can access this class from anywhere, from your home, from anywhere. So, okay, let's start. So first topic is superposition of waves, interference. So we are going to start with the interference. Okay. So do you know about interference? Have you heard this term, interference? Interference. Interference means if two light waves are coming, if there are certain conditions are fulfilled, like both have same frequency, both are coherent, means constant phase difference, then the both light will create some different type of phenomena, different type of pattern. So this is called interference. This pattern is called interference. This pattern is due to interference. Okay. So when two light waves of same frequency and constant phase difference are coming, and there is superposition of these two waves, then at certain point the intensity is lower and at certain point intensity is higher than the previous waves, than the initial waves. So this phenomena is called interference. Simple. So I think you should write the definition. So we have started this interference. Interference. Okay. So interference. Please write the definition. If you don't have the book, then it will be beneficial if you write the definition. Interference. Okay. So please write. When two waves of same frequency and constant phase difference you have written constant phase difference. So constant phase difference is known as coherent. Okay. So please write coherent in bracket. We will learn about coherent after this topic. Okay. Coherent. C-O-H-E-R-E-N-T. Coherent. Okay. Simultaneously present at a same place then they superpose to form the resultant wave of the lower or higher amplitude.
Thus, intensity will also be lower or higher. This phenomena is called interference. Okay, so if two waves, okay, we'll understand it, the interference. If there are two waves, suppose this is a wave, light wave or sound wave, it can be any wave. So suppose we have a wave like this. This is the displacement x, and this is, sorry, this is time, and this is the displacement. Okay, and the maximum displacement is known as amplitude A. This is a wave. At x-axis we have time, so it is moving with the time, and displacement is like this. Displacement is increasing, goes at its maximum, and then again decreasing, and then goes to the negative side. So this is sine wave at t equal to 0 or omega or theta equal to 0, sine 0 equal to 0. So at 0 time, the wave displacement is 0. So it is increasing. Again, we can write it like this, 0, and this is pi phase. 0 pi, sine pi is again 0. Sine pi by 2 is maximum. This point is pi by 2. The middle point is pi by 2. Then again this is 3 pi by 2, and this is 2 pi. Sorry. This is 2 pi. This is 3 pi. Sine n pi is 0. Isn't it? So this is a wave. And in interference, we have seen that there should be two waves of same frequency and constant phase difference. So these are the phases: 0, pi, 2 pi, 3 pi. We can write it like omega t. Okay? Omega t is the phase. So 0, pi, 2 pi, 3 pi, these are the phases. And if we have, this is a wave 1. So I can also write x as y1. Okay? To differentiate two waves. And this is second wave of displacement y2. Okay? And phase omega t. And if we say both have constant phase difference, so phase difference should be constant. It can be 0, pi by 2, pi, or anything. Okay, so if I start the second wave from here, maximum amplitude, okay, means this is shifted to here. So I should start from here. At pi by 2, it should be minimum. Okay.
and then it is going like this, then this. Okay, so here we have the maximum amplitude. This amplitude, suppose this is A1, so this amplitude will be A2. Yeah, I can exhibit it here, A2. Okay, this is the amplitude, this is again A2. And what is the phase difference? What is the phase difference between these two? Phase difference is pi by 2. Means this is 0, this is pi, this middle point is pi by 2. So we can say that this wave is shifted by pi by 2. If I rub this portion and create this straight line here, then the difference between these two waves will be pi by 2. So phase difference is pi by 2 between these two. Here we have maximum amplitude at pi. Suppose this is R0. Then this is pi by 2. And this is pi. So at pi, at phase difference pi, the first wave has 0 amplitude. 0 amplitude or 0 displacement. And the second wave has maximum displacement. Okay? At pi, it has maximum displacement. At pi by 2, the first wave has maximum displacement. But at pi by 2, the second wave has 0 displacement. Okay? So both waves have phase difference of pi by 2. So here, phase difference is equal to pi by 2. Okay? So these two waves are known as coherent wave because at every point they have the same phase difference. ठीक है, हर एक पॉइंट पर इनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस है. यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ गेन मैक्सिमम है और यहाँ ये 0 आ गया. यहाँ देख लो, यहाँ 0 है, यहाँ मैक्सिमम आ गया. कहीं भी देख लो, हर जगह फेज डिफरेंस है पाई बाय 2. ठीक है, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस जब होता है दो वेव्स में, तो उन दोनों वेव्स को बोलते हैं कोहेरेंट वेव. ठीक है, इफ देयर इज नो कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब एक वेव ऐसे है, दूसरी वेव हमने, ये तो समझ में आ गया ना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस. ठीक है, ये फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2. आई कैन मेक अनदर वेव विद फेज डिफरेंस 0, मतलब ऐसा कैसा रेप्लिका बना देंगे तो फेज डिफरेंस 0 जाएगा दोनों में. 0 इज आल्सो ए कांस्टेंट नंबर. ठीक है, फेज डिफरेंस पाई का भी हो सकता है. अभी पाई बाय 2 का बनाया है, पाई का बनाएंगे तो ये दूसरी वेव में नीचे से स्टार्ट कर देंगे. पाई वाला इतना पोर्शन स्किप कर देंगे, नीचे से स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अंडू का भी ऑप्शन होता है क्या? अरे ठीक है, अब रैंडम कोई भी वेव बना दो. सपोज कोई भी वेव है, ऐसे ऐसे चल रही है. ठीक है, अब these two are incoherent. पहले तो कोहेरेंट थी, अब इन दोनों में क्या फेज डिफरेंस कितना है दोनों में, we cannot determine. कभी फेज डिफरेंस, यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है, यहाँ पे पता नहीं कितना है ना, पाई बाय 2 और पाई के बीच में है. यहाँ पे we again don't know. ठीक है, हर जगह मतलब we can calculate the phase difference, but it is varying with the time. Constant phase difference नहीं है, तो these two are incoherent. ठीक है, समझ में आया, कोहेरेंट इनकोहेरेंट.
फिनोमिना ऑब्जर्व करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट टू वेव्स आर इन कोहेरेंट, टू वेव्स आर कोहेरेंट, ठीक है ना। दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों वेव्स कोहेरेंट होने चाहिए। अगर वो कोहेरेंट नहीं है तो इंटरफेरेंस फिनोमिना ऑब्जर्व नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इंटरफेरेंस में क्या होता है, कोई भी दो वेव एक साथ जा रही है, किसी पॉइंट पे मिलती है, तो उस पॉइंट पे टोटल जो एम्पलीट्यूड होता है या टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों वेव्स के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर एडिशन के इक्वल होता है। If there are two waves passing through a same medium, then the resultant wave amplitude or resultant wave displacement is the vector addition of the each of the wave displacement, ठीक है। तो कभी भी हमें टोटल एम्पलीट्यूड या टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, maximum displacement is amplitude. This is our displacement at y-axis. So this maximum displacement is amplitude. ठीक है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या करते हैं हम, सपोज दिस इज द वॉल एंड हियर इज ए रोप और ये कोई बॉल है, बॉब, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, यहाँ इसको धक्का दिया, ये इधर जाएगा, वापस इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे से मोशन करता रहेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, मिडल पोजीशन पे, जो इसकी स्टैटिक पोजीशन है, ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है और यहाँ कितना है, मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड ये हो गया इतना ए, और इतना ये इधर जाएगा, ये इधर भी इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये भी ए। इसको आप माइनस ए भी लिख सकते हो, डायरेक्शन है, मिडिल पोजीशन को 0 माना तो इधर प्लस से हो गया, उधर माइनस से हो गया। तो यही हमने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है ना। ये सेम वेव यहाँ ड्रॉ की है, मिडिल पोजीशन पे 0, जैसे जैसे वो उधर जा रहा है वैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, टाइम भी तो बढ़ रहा है, इधर जा रहा है तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ता 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 ये मैक्सिमम हो गया, ये यहाँ मैक्सिमम हो गया, फिर वापस करूंगा, वापस अपने मिडिल पोजीशन पे आ गया, वापस 0 पे आ गया, फिर क्या दूसरी साइड जा रहा है, ये दूसरी साइड धीरे धीरे बढ़ रहा है, दूसरी साइड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, वापस ए, इसको 0 से नीचे लिख रहे हो तो माइनस से भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर वापस धीरे धीरे अपनी मिडल पोजीशन पे आया, धीरे धीरे मिडल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो इसी मोशन को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये साइन मोशन हो गया, साइन वेव, ठीक है। कोस वेव बनानी है तो क्या करना है, पहले हमें बॉब को यहाँ तक खींच के रखना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कोस 0 इज 1, ठीक है, 0 पे इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो, फिर यहाँ से छोड़ देना, तो ये जाएगा, फिर वापस आएगा, ठीक है। तो इस तरह का मोशन। तो साइन वेव और कोस वेव दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है, साइन 0 इज 0 और कोस की 0 वैल्यू कहां पे होती है, कोस π/2 इज 0, ठीक है। तो साइन तो 0 पे 0 आ गया और कोस π/2 पे 0 आया, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोस π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2, मतलब π/2 इसमें ऐड कर दे कोस में तो साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो साइन और कोस वेव भी कोहेरेंट वेव्स है, दोनों में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है π/2, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, दो वेव्स है वो कोहेरेंट होनी चाहिए
और दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी बराबर होने का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बराबर मतलब टाइम पीरियड बराबर, है ना? और फ्रीक्वेंसी बराबर मतलब टाइम पीरियड बराबर। तो ये एक टाइम पीरियड हो गया, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एक टाइम पीरियड हो गया। तो यही टाइम पीरियड दूसरी वेव का होना चाहिए। ठीक है, टाइम पीरियड मतलब ये अपने इनिशियल पोजीशन से शुरू करता है, इधर मैक्सिमम जाता है, वापस इनिशियल पे आता है, वापस मैक्सिमम जाके वापस इनिशियल पे आता है। एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, है ना? द टाइम पीरियड इज to complete the cycle, the time required by a ball or simple harmonic oscillator to complete the cycle. ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा कोहेरेंस। कोहेरेंस एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस समझ गए ना कि दो वेव में इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल है जब दे आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कोहेरेंट। Then at some points the intensity will be maximum and at other point intensity will be minimum. Intensity क्या होती है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर, जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसके स्क्वायर इज इक्वल टू इंटेंसिटी। तो जब दो वेव चलेगी साथ में तो एम्पलीट्यूड किसी पॉइंट पर उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा। ठीक है, मींस एम्पलीट्यूड बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। So if I have a wave like this and another wave like this, ठीक है, yes, π/2 का फेज डिफरेंस, थोड़ा ये इधर आना चाहिए था। सपोज ये है दिस y1 y2 ओमेगा t ओमेगा t, टाइम साथ में है, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों मानो सुपरपोज हो रही है। सुपरपोज मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रही है। तो जो रिजल्टेंट वेव होगी, रिजल्टेंट आर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? किसी पॉइंट पर इन दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट का एडिशन। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो ये y2 है, यहाँ पे ये y1 है, तो यहाँ पे y2 प्लस y1, तो रिजल्टेंट विल बी y2 और y1 प्लस y2। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या है? y1 इज 0, y2 इज दिस, तो रिजल्टेंट विल बी ओनली y2। ठीक है, π/2 पे क्या है? y1 is maximum, y2 is 0, तो अगेन वी हैव y1 is 0 हो गया, ये y2, तो π/2 पे भी 0 नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो मतलब दोनों का एडिशन होता है, तो इसलिए कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, कहीं पे दोनों का ही, दोनों मान लो ज्यादा है, सपोज ये है ना, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो टोटल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो आता है ना वो इस तरह का पैटर्न आता है, मैक्सिमम इस तरह का पैटर्न, मैक्सिमा और मिनिमा दिखते हैं। ठीक है, बीच में मैक्सिमा होता है,
फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, टर्शियरी मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, इस तरह का पैटर्न होता है, उसको इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, मतलब ये तो हमने दो वेव को लेके बात की है। इन रियलिटी तो बहुत सारी वेव्स होगी ना, कोई भी सोर्स से निकल रही है तो बहुत सारी वेव्स होगी, तो उनका इंटरफेरेंस पैटर्न जो रिजल्टेंट होगा वो उस तरह दिखाई देगा। ठीक है, कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट? यू कैन रेज योर हैंड। There are so many hands. So what should I do? एक जने को अनम्यूट करते हैं। So whom I should unmute? Nikhil Kumar. Nikhil Kumar, may I give you permission to unmute yourself? Ask to unmute. निखिल कुमार। मैम बहुत सारी वेव्स जब होंगी तब कैसे होगा पैटर्न? तब वो जो रिजल्टेंट पैटर्न मैंने दिखाया ना अभी कि बीच में मैक्सिमा होगा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर टर्शियरी मैक्सिमा। यस मैम, वो होगा रिजल्टेंट। और मैम जैसे साइन और कॉस के ग्राफ्स कोहेरेंट है, हाँ, उसी तरह टैन और कॉट के भी होंगे ऑब्वियसली। ओके मैम, बस मैम। ओके, थैंक यू। अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक चीज हमने देखी है अभी तक। अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स करेंगे, ठीक है। दो वेव्स को लेके अगर उनको सुपर इम्पोज करते हैं, सुपरपोज करते हैं, तो रिजल्टेंट वेव किस तरह की आएगी, है ना, उसका फॉर्म क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट योर फर्स्ट टॉपिक, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। आप साथ में लिखते भी रहिए, है ना, लिखते रहने से ज्यादा अच्छे से ग्रास्प होता है। तो सपोज वी हैव टू कोहेरेंट सोर्सेस। अच्छा, मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि कोई भी सोर्स से लाइट कैसे आती है ना, लाइक वी हैव इलेक्ट्रिक बल्ब। So suppose we have an electric bulb, then how we get light from that bulb? So there are some energy levels in an atom. Suppose this is ground state level, and initially atoms are at ground state. Okay, this is the ground state when there is no illumination in the bulb. And suppose this is excited state. So if we provide external energy, suppose this is the external energy, then atom will absorb that energy and go to the excited state. ठीक है, and it will stay nearly 10 raised to power minus 8 second in the excited state and comes back to its ground state. तो ये अभी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, ये एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा
और फिर 10⁻⁻8 सेकेंड बाद फिर से आगे ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट में आएगा एक्साइटेड स्टेट से, तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी होगी इन दोनों स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल, ठीक है। ये जो इंसिडेंट एनर्जी है उसको या तो इस डिफरेंस के इक्वल होना पड़ेगा या इससे ज्यादा। अगर इससे कम हुई तो ये एटम मान लो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। इफ दिस एनर्जी इज लोअर देन द डिफरेंस ऑफ दीस टू लेवल्स देन एटम कैन नॉट गो टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उतनी एनर्जी उसको मिलेगी नहीं कि वो एक्साइटेड स्टेट में जा पाए। अब ये एक सोर्स है। अब मान लो हम दो अलग अलग सोर्स लेते हैं, ये एक सोर्स है, अब मान लो कोई दूसरा सोर्स है, दूसरा बल्ब है। अब उसमें भी सेम चीज हो रही है, एनर्जी गेन करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, 10⁻⁻8 सेकंड तक रुके एटम, फिर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ गए, ठीक है। दो डिफरेंट सोर्स, दीज आर टू डिफरेंट सोर्स। अब ये दोनों सोर्स क्या कोहेरेंट हो सकते हैं? कैन दीज टू सोर्सेस बी कोहेरेंट? दोनों सोर्स में क्या है कि टाइम पीरियड वी कैन नॉट से दैट द टाइम पीरियड इज इक्वल फॉर दीज टू सोर्स। अब मान लो हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड करने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी डिफरेंट फॉर दीज टू सोर्सेस। अब ये एक्साइटेड स्टेट में गए तो कितने एटम एकदम से एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, दो दे आर सेम एटम्स। सपोज दोनों ये फिलामेंट वायर्स है, ठीक है, सेम एटम जो हमारे घरों में यूज करते हैं हम वायर, बल्ब फिलामेंट वायर होता है उसमें। तो इफ दीज आर सेम सोर्सेस तो भी वो कोहेरेंट नहीं हो सकते, है ना। अलग अलग एटम सेम है पर सोर्स अगर अलग अलग है तो वी कैन नॉट से दैट दीज आर कोहेरेंट, है ना, उनमें फेज डिफरेंस सेम होगा। तो जब प्रैक्टिकली हम कोहेरेंट सोर्सेस को यूज करते हैं तो हम दो अलग अलग सोर्स यूज नहीं करते, हम एक ही सोर्स को कुछ फिनोमिना के थ्रू दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक ही सोर्स है, सोर्स से लाइट आ रही है और मान लो दो आपने होल बना दिया, तो एक होल से भी लाइट जाएगी, दूसरे होल से भी लाइट जाएगी, तो एक ही सोर्स दो सोर्सेस में डिवाइड हो गया। या फिर डिफ्रैक्शन के थ्रू मान लो लाइट आई और एक आपने, ये डिफ्रैक्शन ही है, दो अलग अलग होल बना दिए तो दैट इज डिफ्रैक्शन, है ना। डिफ्रैक्शन मतलब कि अपर्चर से वो मुड़ जाए, अपर्चर को पार कर जाए, जहां पे उसको जगह मिले, बाकी वो रुक जाए सोर्स। मतलब सपोज वी हैव ए बल्ब एंड वी हैव प्लेस्ड ए कार्डबोर्ड इन फ्रंट ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो अब कार्डबोर्ड लगा दिया तो लाइट तो नहीं जाएगी ना कार्डबोर्ड के दूसरी तरफ, और हमने एक होल बना दिया कार्डबोर्ड में तो लाइट होल से पार होकर चली जाएगी, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब एक और होल बना दिया तो दूसरे होल से भी पार होकर चली जाएगी। तो ये एक सोर्स है वो दो में डिवाइड हो गया, तो एक ही सोर्स है तो डेफिनेटली इसकी सारी जो लाइट आएगी दैट विल बी कोहेरेंट, देयर विल बी कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली जब हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो हम एक ही सोर्स को दो सोर्सेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट कोहेरेंस। तो नाउ वी विल सी अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। Superposition of waves. So suppose we have two sources, two sources, source S1, source S2, and this is our screen. ठीक है, और इस स्क्रीन पे पॉइंट लेते हैं P।
स्क्रीन ये है, ये स्क्रीन का मिड पॉइंट है सपोज, तो ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं दोनों को। नहीं चल नहीं